Hello guys, welcome to today's reading, and this was totally about the MCQs. As you can see here, I have seen many people who were struggling to find the answer, so this video is for them. And if you want online paid classes about the writing academic, so you can just hit me up on any social media platform, or just go to the link below. The link is given in description and just check that out. So let's start what it was about. It was about the pizza. So many of you might like pizza, so this is about the history of it, and then about its advantages of eating that, and one thing about the National Pizza Month. So go to the questions, and there are total 6 questions and all are multiple choice. So what we here do is, हमको हमें सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो रीड करने होंगे. सो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, पिज़्ज़ा ओरिजिनली क्या था. सो केयर शेप में था, पिज़्ज़ाटा कहा जाता था, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर उसे बेक किया जाता था, या फिर वो वुड की हेल्प से बनता था. सो लेट्स फाइंड आउट. गो टू द फर्स्ट पेज. Pizza is a savory dish of Italian origin consisting of a usually round, flattened base of leavened wheat-based dough topped with tomatoes, cheese, and often various other ingredients, baked at a high temperature. लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें है कि baked at extremely high temperature. So this option is wrong. Just cross it out like this. Okay. स्केयर शेप में इसकी हमें जानकारी दी गई है. इट इज़ यूजली राउंड. सो आंसर ए बी गलत है. ओके, जस्ट क्रॉस इट आउट. पिज़्ज़ाटा वर्ड अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिले तो फाइंड करते हैं. ये रहा पिज़्ज़ाटा वर्ड. बेक्ड एट अ हाई टेम्परेचर ट्रेडिशनली इन अ वुड फायर्ड ओवन ट्रेडिशनली. ओके, wood fired oven. A small pizza is sometimes called, sometimes, not every time. So our B option is also wrong. So the correct one is D. So the answer of first is D. Which of the following is true for Italians? इनमें से कौन सी एक बात Italians के लिए सही है? Italians means जो लोग इटली में रहते हैं. Go to the first page and start reading. ऐसी कौन सी बात है जो इटालियंस के लिए सही है? यूज़ नाइफ एंड फॉर्क टू कंज्यूम इट इन रेस्टोरेंट्स. ओके, नाइफ और फॉर्क वो यूज़ करते हैं जब भी उन्हें खाना होता है रेस्टोरेंट्स में. इटालियंस लाइक टू हैव पिज़्ज़ा कट. इटालियंस जो है वो कटा हुआ पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं. इटालियंस लाइक टू ईट पिज़्ज़ा बाय हैंड. इटालियंस अपने हाथ से खाना पसंद करते हैं. नाइफ इज़ यूज टू कट द पिज़्ज़ा इनटू स्लाइसेस. नाइफ जो है वो यूज़ किया जाता है पिज़्ज़ा को स्लाइसेस में काटने के लिए. So go to the first page and start reading. In Italy, pizza served in formal settings such as at a restaurant is presented unsliced. अनस्लाइज्ड मतलब बिना कटा हुआ पिज्ज़ा जो है वो दिया जाता है रेस्टोरेंट्स में. ओके, एंड ईटन विद द यूज़ ऑफ नाइफ एंड अ फॉर्क. नाइफ और फॉर्क की हेल्प से उसे खाया जाता है, कंज्यूम किया जाता है. इन कैजुअल सेटिंग इट इज़ कट इनटू wedges to be eaten while हैंड हेल्ड इन द हैंड. सो हमारे जो कई ऑप्शन हैं जो गलत हो गए. इटालियंस लाइक टू हैव पिज्ज़ा कट, नो. इटालियंस लाइक टू हैव पिज्ज़ा कट, नो, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है. जस्ट क्रॉस इट आउट. इटालियंस लाइक टू ईट पिज्ज़ा बाय हैंड, नहीं, ये भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. नाइफ इज़ यूज, नो, इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो और करेक्ट ऑप्शन इज ए. ओके, सो जस्ट राइट इट हेयर, ए. The term pizza coined in Campania. Coined मतलब स्टार्ट हुई या फिर यहाँ से इसकी शुरुआत हुई. पिज्ज़ा का नाम शुरू कहाँ से हुआ उसके लिए यूज़ किया गया coined. Was found in a Latin manuscript in Gaeta located in North Italy. Okay, Gaeta वर्ड है, नॉर्थ इटली में लोकेटेड है. ये कोई सिटी हो सकती है, कोई प्लेस का नाम है. Was found written in 10th century document, first used in Naples. Just go to the first page. We have read this one. Go to the next one. The term pizza was first recorded in the 10th century in a Latin manuscript. We got the word Latin manuscript
from the southern Italian town of Gaeta. Okay, we got the word Gaeta, we got the word Latin manuscript, but this option is wrong because of north. In passage, it is written that it is southern Italian city or southern Italian town, but in the question there is north, so this B option is totally incorrect बिकॉज ऑफ जस्ट नॉर्थ. जब भी आपको ऐसे कोई भी ऑप्शन मिले बीच के जैसे, सो वो हमेशा आपको बहकाने के लिए होते हैं, आपको आंसर, आपको जानबूझकर आंसर गलत करने के लिए बनाए जाते हैं. सो ऐसे ऑप्शंस को बहुत ज़्यादा ध्यान से करने की ज़रूरत है. ऑन द बॉर्डर विद कंपानिया, कंपानिया के बॉर्डर के साथ मिला था वो. सो पॉइंट इन कंपानिया, ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, उसके पास मिला था लेकिन वहाँ नहीं मिला. सो ऑप्शन ए भी गलत है. फर्स्ट यूज इन नेपल्स, मॉडर्न पिज्ज़ा वॉज इन्वेंटेड इन नेपल्स. ठीक है, मॉडर्न पिज्ज़ा जो था वो नेपल्स से में मिला था. सो नेपल्स वाली ऑप्शन की वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत है. सो वॉज फाउंड रिटन इन 10th century डॉक्यूमेंट. यस, मॉन्यूस्क्रिप्ट जो होते हैं वो एक तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन ये 10th century का डॉक्यूमेंट था. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके, सी. नेक्स्ट, द एसोसिएशन वरासे पिज्जा नेपोलिटाना क्या है? इज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड विद नो इंटेंशन ऑफ अर्निंग सरप्लस मनी. उनका कोई इंटेंशन नहीं था सरप्लस मनी का. एम्स टू प्रमोट पिज्ज़ा, पिज्ज़ा को प्रमोट करना चाहते हैं वो. रजिस्टर्ड विद यूनेस्को, यूनेस्को से रजिस्टर्ड है. हैज़ नेवर प्रमोटेड नियापोलिटन पिज्ज़ा, नियापोलिटन पिज्ज़ा को उन्होंने कभी भी प्रमोट नहीं किया. लेट्स फाइंड आउट. हियर इट इज, द एसोसिएशन वेरासे पिज्ज़ा नेपोलिटाना और True Neapolitan Pizza Association is a non-profit organization founded in 1984 with headquarters in the Naples that aims to promote traditional Neapolitan pizza. So उनका जो aim है वो है promote करना Neapolitan pizza. So यहाँ आइए और आपको पता लगेगा कि aims to promote pizza option नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक पिज़्ज़ा नहीं उन्होंने प्रमोट करना, सिर्फ Neapolitan pizza है. Has never promoted, ये भी आंसर रॉन्ग है. सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस. सो हमारे सक्सेस के चांसेस अब ज़्यादा हो गए हैं. In 2000, okay, next keyword is UNESCO, and here it is. Neapolitan pizza was registered with the European Union as a traditional specialty granted dish, and in 2017 the art of its making was included on UNESCO's list of intangible cultural heritage. तो यूनेस्को यहाँ पर ऐसे में फालतू में ही दिया हुआ है. सो ये ऑप्शन भी गलत है. सो वी आर लेफ्ट विद दिस ऑप्शन एंड दिस वन इज करेक्ट. इज एन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड विद नो इंटेंशन ऑफ अर्निंग सरप्लस मनी, मतलब प्रॉफिट. उनका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो प्रॉफिट जो है उसको बनाएं. सो आपको ये भी दिया हुआ है कि इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनको प्रॉफिट नहीं चाहिए. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए. सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनट्रू फॉर पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा के लिए कौन सी इन चारों में से बात गलत है? पिज़्ज़ा इज सोल्ड फ्रेश एंड फ्रोजन. पिज़्ज़ा को फ्रेश और फ्रोजन करके बेचा जाता है. पिज़्ज़ा क्रस्ट कैन बी फ्रोजन एंड और रीहीटेड. पिज़्ज़ा का जो क्रस्ट है उसको फ्रीज भी किया जा सकता है और रीहीट भी किया जा सकता है. अनकुक्ड पिज़्ज़ा इज अवेलेबल एज टेक एंड बेक. अनकुक्ड पिज़्ज़ा जो है वो अवेलेबल है कि आप लेकर उसे कहीं भी बेक कर सकते हैं. कस्टमर्स कांट मेक पिज़्ज़ा एट देयर होम्स. जो कस्टमर हैं वो अपने घरों में पिज़्ज़ा नहीं बना सकते. So we have left here and we'll start reading. Pizza is sold fresh and frozen. Okay. पिज़्ज़ा को फ्रेश और फ्रोज़न दोनों में सेल किया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन सही है. सो दिस इज नॉट फॉल्स, सो वी विल जस्ट कट दिस. ओके, नेक्स्ट थिंग, लेट अस सी व्हाट इट इज. एंड होल और एज पोर्शन साइज slices or pieces. Methods have been developed to overcome challenges such as preventing the sauce from combining
with the dough and producing a crust that can be frozen and reheated without becoming rigid. So the crust can be frozen and reheated. So methods जो हैं वो develop किए जा चुके हैं. So हमारा जो B ऑप्शन है ये भी सही है. So this is not false. So just cross it out. We have to find out the false thing. Okay, let's see. Next is there are frozen pizzas with raw ingredients and self-rising crust. Another form of uncooked pizza is available from take and bake pizzerias. So uncooked pizza जो है वो available है from take and bake pizzerias. Pizzerias होते हैं जो पिज्ज़ा बेचते हैं, वो वाले रेस्टोरेंट्स को pizzerias बोलते हैं. So uncooked pizza available है. So we have uncooked pizza is available as take and bake. ये भी ऑप्शन दिया हुआ है. So this is also true. So we will just cross it out and we are left with this option. This is definitely correct. But let's see कि ये दिया कहाँ हुआ है. This pizza is assembled in the store then sold to customers to bake in their own ovens. Customers जो हैं वो यहाँ से assemble किया हुआ पिज़्ज़ा लेकर जा सकते हैं. Then वो अपने घरों में जाकर अपने ovens में उसे bake कर सकते हैं. सो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, कस्टमर्स कांट मेक पिज्ज़ा. सो ये जो ऑप्शन है ये गलत था. सो दैट इज़ वाई आवर आंसर इज डी. नाउ द लास्ट वन, नेशनल पिज्ज़ा मंथ. सो आपको नेशनल पिज्ज़ा मंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है तो सीधा जाओ यहाँ पर. नेशनल पिज्ज़ा मंथ इज़ एन एनुअल ऑब्जर्वेंस. ओके, बट हमें ये भी पढ़ने होंगे. was celebrated in the month of October 1984. उसे 1984 अक्टूबर में ही मनाया गया था. is observed in North America only. सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में मिला था. was promoted by Pizza Today magazine. उसे Pizza Today magazine ने प्रमोट किया था. people visit all type of pizza every day. So ये जो ऑप्शन है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. So ये आपका ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएगा. ठीक है, कोई पिज्ज़ा को कैसे विजिट कर सकता है. सो ये वाला ऑप्शन आप पहले ही क्रॉस कर दो. So we are left with three options. National Pizza Month is an annual observance. Annual मतलब हर साल होता है. So ये नहीं कि अक्टूबर 1984 में ही है. आपको दिया ज़रूर हुआ है. This observance began in 1984. ये स्टार्ट हुआ था 1984 के अक्टूबर मंथ में, लेकिन ये हर साल हो रहा है. तो आपका जो ए ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा. वाज सेलिब्रेटेड कि उसे सिर्फ और सिर्फ 1984 में ही बनाया गया था. सो ये ऑप्शन जो है वो गलत है. सो वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस बी एंड सी. ओके, नेशनल पिज्जा मंथ इज एन एनुअल ऑब्जर्वेंस दैट अकर्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इन यूएस एंड सम एरियाज ऑफ कनाडा. सो ये कनाडा और यूएस में देखा जाता है या फिर मनाया जाता है. सो इफ़ यू नो अबाउट द जियोग्राफी एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट in North America, Canada and US are the main countries. So our option for the is observed in North America only is correct. But let's see कि C option दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ. And was created by Gary Durnall, the publisher of Pizza Today magazine. So Gary Durnall ने ये स्टार्ट किया था, जो कि पब्लिशर था पिज्ज़ा टुडे मैगजीन का. लेकिन यहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पिज्ज़ा टुडे मैगजीन ने उसे प्रमोट किया था. सो आवर सी ऑप्शन इज नॉट गिवन. सो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर बी एंड दैट इज योर राइट आंसर. सो दिस वाज होल हाउ यू डू the MCQs with elimination technique. and if you find this video helpful please share this. और मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन राइटिंग क्लासेस चाहिए, एकेडमिक आल्सो आप करना ही चाहते हैं, सो प्लीज़ नीचे दिए हुए लिंक पर अपना रिस्पांस ज़रूर दें. आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. एंड फॉर गेटिंग मोर ऑफ दीज टाइप ऑफ रीडिंग्स प्लीज़ फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. थैंक यू.